Sexually transmitted diseases are those diseases which are generally transmitted in the person because of unsafe sexual practices. Okay, if some unsafe sexual relationships have done by some people with so many other sexual partners, in that case he or she is more, okay, that person is able to get those diseases. So here the definition is given in your book. First line: diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse. They are collectively known as sexually transmitted diseases. ठीक है बेटे, तो चीफ रीजन बिहाइंड दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कि हमेशा अगर लोग जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं एक से ज्यादा लोगों के साथ या एक से ज्यादा उनके सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, in that situation the person is more susceptible to such kind of diseases. So it only happens because of unsafe sexual practices. They are also known as venereal diseases. ठीक है, इसको हम venereal diseases भी कहते हैं. They are also known as reproductive tract infections because these sexually transmitted diseases, they are actually concerned with the infections of the genital organs, or you can say reproductive tracts. ठीक है, तो उस केसेस में वो कहते हैं कि पर्सन जो है he or she is going to face some painful experiences because of these unsafe sexual practices. So in that situation, if a person is very much careless, he is very fond of such a sexual relationship and having so many sexual partners to fulfill his or her desire, or you can say a person is a prostitute, in that situation they are able to get these diseases which are venereal diseases or reproductive tract diseases. ठीक है बेटे, तो here I have written infectious diseases transmitted with some form of intimate or sexual contact with other persons. ठीक है, so intimacy is required for getting such kind of diseases. It may be sexual intercourse, it may be oral genital contact, it may be hand genital contact, or it may be anal intercourse. ठीक है, different type of things are there. Anal intercourse means the insertion of the reproductive organs in the female genital tract. ठीक है, and sometimes the genital organs they are you can say they got infections if they are misused by certain people by you can say unwanted touch of these genital organs. ठीक है, oral genital contact you are able to understand, and then sexual intercourse if it is done with so many sexual partners. Okay, sometimes some people they visit some of the unwanted places to satisfy their sexual desires. They comes in contact with some sex workers, prostitutes. In that situations, in order to fulfill their sexual desires, they are actually inserting themselves in such critical situations and they got infections of their genital organs. So उस केस में वो कहते हैं कि काफी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है. So these sexually transmitted diseases, they are infections that are spread from one person to another. ठीक है बेटे, because you know that sexual act is always a very close intimacy between the two persons. In that situation, such kind of infections they can be easily spread from one person to another. So that's why we call them as sexually transmitted diseases. So in these sexually transmitted diseases, in order to get infection, a person must have to be engaged in sexual activity. That means that they involve direct genital contact or exchange of semen or some of the other body fluids with someone else. Okay, that is infected with this sexually transmitted disease. For example, if a woman have a relationship with so many other persons, so if any of a healthy person they come in contact with that woman who already have so many sexual relationships with other so many males, in that situation there is an intimacy between the two people. There is a direct contact between their genital organs. Exchange of body fluids is there. Okay, exchange of semen is there in the body of the person. So in that situation, the person is more vulnerable to such kind of sexually transmitted disease. And one of the very important thing related with these sexually transmitted disease is that the individuals who are suffering from these sexually transmitted diseases in the early stages of these infections, they remain asymptomatic.
मीन्स उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अर्लियर स्टेजेस में दिखाई नहीं देते। अगर कोई वीमेन जो है वो एज अ सेक्स वर्कर जो है वो काम कर रही है, ठीक है, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं उसके पीछे, तो in that situation that woman if she has such kind of sexually transmitted disease, then in the body of that woman the symptoms they are not appear in the early stage, तो symptoms जो है वो hidden रहते हैं women's के अंदर। तो उस केस में वो कहते हैं कि if any of the person they come in contact with that lady, so he is not able to find out that she is getting any kind of infection, so that can be considered as a critical phase because the symptoms they are not appearing, but that women have a mild kind of symptoms। ठीक है बेटे, और दूसरी चीज देखो क्या लिखी है, the symptoms are mild and disappear after the onset of the infection। ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स जो है काफी जो है माइल्ड होते हैं सिम्टम्स, और कहते हैं कि जब इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो काफी समय तक जो है सिम्टम्स हिडन रहते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, सिम्प्टोमेटिक रहता है वो पर्सन। तो इस तरह का पर्सन जो है वो दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ भी उसके सेक्सुअल रिलेशन है उसके अंदर कितनी जल्दी डिजीजेस जो हमको स्प्रेड कर सकता है। ओके बेटे, अनदर थिंग इज सच काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस दे आर द कम्युनिकेबल वन। You know that communicable diseases are those diseases which are the infectious kind of diseases, and they can be easily spread from one person to another. ठीक है, even if a person is have a I want to say that a person who is a married male, if he want to satisfy his sexual desires and in order to fulfill that he come in contact with some sex worker or such kind of ladies, and when that person has sexual intercourse with his own lady or his married women, then he is able to spread that disease in his life partner also, because such kind of diseases they are the communicable diseases, they can be easily transmitted from one person to another. Another very important thing is social stigma is attached with these sexually transmitted diseases, because such kind of persons who are engaging in such unsafe sexual practices they generally hide the things from their families। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस में एंगेज है वो हमेशा अपने आप को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, तो उस केस में इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज है कि दे आर आल्सो दे हैव अ फियर इन देयर माइंड that if they share that they are engaged in such kind of illegal activities, then what other people say think about them। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये डॉक्टर को भी विजिट नहीं करते। अगर इनको शक भी होता है कि हमें कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं होगी, तो अर्लियर स्टेजेस में दे आर नॉट इन कमिंग इन कांटेक्ट विद डॉक्टर्स। तो उस केस में वो कहते हैं कि अर्लियर डायग्नोसिस इट कैन नॉट बी हैपन इन दीस केसेस, क्योंकि ये हाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को लोगों इस तरह के जो भी लोग हैं, और इजिली सोसाइटी में ये डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, डॉक्टर से नहीं मिलते हैं टाइम रहते, तो इसलिए इनका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता, और जब तक वो डॉक्टर को विजिट करते हैं तब तक माइल्ड सिम्टम्स जो है उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं कि उनका डायग्नोसिस जो है और प्रिवेंशन जो है इस डिजीज का फर्दर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बेटे, तो अगर वो कहते हैं कि if the sexually transmitted diseases if they were diagnosed at the earlier stages, then their proper treatment can be done. Otherwise, if the person cannot visit the medical office in time, then he or she is not able to prevent this disease, and that can be act as a critical stage later on, and even the infection it spreads so much that the person is not even survive at the later stages। ओके बेटे, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के नेम लिखे हैं इन्फेक्शंस के। ठीक है, गोनोरिया इज द कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, देन सिफिलिस इज देयर, देन क्लैमाइडिया इज देयर। ठीक है, कुछ डिजीजेस जो है वो बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे क्लैमाइडिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं बैक्टीरिया के नेम जानने में तो दे विल फाइंड आउट द नेम आल्सो। ठीक है, वैसे हमें नेम नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन अवर बुक, वी हैव टू फोकस ऑन द सिम्टम्स ओनली। ओके बेटे, common symptoms can be asked in examination, but if you are interested to know the name of the bacteria as well as the virus, you go through internet and find out. And some of the sexually transmitted disease such as herpes,
ठीक है, जेनाइटल वॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, ये सारी जो है वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, और उसमें से वो कहते हैं कि HIV जो है, एड्स है और हेपेटाइटिस जो है, अगर अर्लियर स्टेजेस पे इनके बारे में पता लगता है। देखो एड्स जो है उसमें तो सर्वाइव नहीं करता है पर्सन का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एड्स का जो वायरस होता है, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज ऑफ 10 years. After 10 years the death of the person is always there. ठीक है, 10 साल जो है उसके बाद एड्स का जो विक्टिम है उसकी डेथ श्योर है। आपको ये पता है कि अभी तक भी, ठीक है, मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट दिस डिजीज। तो HIV इन्फेक्शन में डेथ श्योर होती है। हेपेटाइटिस बी जो है उसका वैक्सीनेशन जो है इट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, सम ऑफ द पीपल आल्सो गॉट दिस वैक्सीनेशन, आई आल्सो हैव डन दिस वैक्सीनेशन। ओके बेटे, उसके बाद हर्प्स जो है वो भी जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वायरस से होती है। जेनाइटल वॉर्ड्स, देखो नाम से पता लग रहा है, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है उसमें वॉर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वॉर्ड्स क्या होते हैं, पंजाबी में हम इसको छाले कहते हैं। ठीक है, लेटर ऑन दे आर फिल्ड विद अ फाउल काइंड ऑफ फाउल स्मेलिंग फ्लूइड। उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है और उसमें से बहुत ही फाउल स्मेल आती है। ठीक है, और इस तरह का पर्सन जो है यूरिनेट करते समय भी उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, साइफिलिस, गोनोरिया एंड क्लमाइडिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेस है। तो आपको अभी मैंने बोला इफ द person it comes in contact with the medical officer soon then the person is able to diagnose the disease। ठीक है, क्योर उसका जो डिजीजेस है उनका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का अर्लियर केसेस में हो सकता है, और अगर डिले हो गया है उस केस में वो क्रिटिकल हो सकती है। उसमें से HIV जो है उसका वो कहते हैं कि क्योर जो है अभी तक नहीं किया जा सकता है। कुछ ड्रग्स जो है दैट आर एनहांस द एज ऑफ द पर्सन। तो जहां पर्सन की डेथ 10 इयर्स में होनी है, जैसे अगर 12 इयर्स में हो जाएगी या 14 में हो जाएगी, बट डेथ इज अ सर्टेनिटी दैट इज श्योर इन केस ऑफ एड्स विक्टिम। ओके बेटा, here I have written again the definition. Sexually transmitted diseases starts out as infection and once they cause a disruption of the normal body functions or structure then it is considered as a disease। कहने का मतलब ये है कि इनिशियली तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो एक इन्फेक्शन के फॉर्म में जो है अपीयर होती है बॉडी में। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल, सम ऑफ द पीपल थॉट दैट दे मे बी द माइनर इन्फेक्शन एंड दे डू नॉट मतलब अपने आप को वो सेक्सुअल एक्ट्स जो है उनसे हटाते नहीं है। ठीक है, देयर मे बी मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। पॉवर्टी इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो सम ऑफ द पीपल दे एंगेज्ड themselves in sexual activities, unsafe sexual practices, they are you can say working as a sex workers। ठीक है, engaged in such kind of practices in order to make money only। तो इनिशियली इनको ऐसे लगता है कि इट इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, पर बाद में क्या होता है कि दिस इन्फेक्शन इट स्प्रेड सो मच that it causes the disruption of the normal body function। The normal body function they cannot be successfully happen in the body। ठीक है, metabolic activities they are also not doing well in your body। Then they are able to find out that it is not a normal infection, it is actually a big sexually transmitted disease। Okay bete, so here I have written some of the symptoms or you can say some of the signs जिसको कि जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि the people is suffering from this kind of disease। So range of signs and symptoms they are actually there and I have already told you that these symptoms they are not appear at the earlier phase of the infection, they remain unnoticed। और सबसे बड़ी बात होती है कि women are the major victim। ठीक है, women जो है इसके अंदर जो है कैरियर होती है डिजीज की ज्यादातर, और वीमेन्स के अंदर वो सिम्टम अपीयर नहीं होते। तो if some of the healthy person have a sexual relationship with such infected women, so he is able to get that disease because such kind of symptom is not appear on the body of the female। Okay beta, so that is a very important thing, it will be a critical one in future। Okay beta, तो उसमें उसने बताया है कि some of the signs are there, for example sores or bumps on the genitals और in the oral or rectal area। ठीक है, तो सोर मीन्स का मतलब है स्वेलिंग रहेगी जेनिटल ऑर्गन्स में, बम्प्स में, रेक्टल एरियाज जो है उसमें स्वेलिंग रहती है। पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन, इस तरह का पर्सन जब भी यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है,
तो यूरिन जो है उसमें उसको जलन महसूस होती है, पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है, ही इज नॉट एबल टू यूरिनेट प्रॉपर्ली. Discharge from the penis, foul smelling discharge is there from the penis of such male. Then unusual or odd smelling vaginal discharge in case of women. ठीक है, वेजाइना जो है उसमें से स्मेली डिस्चार्ज जो है रिलीज होता है. वेजाइनल ब्लीडिंग इज आल्सो देयर. इफ यू सी द फोटोग्राफ्स ऑन इंटरनेट तो आपको पता लग जाएगा. When they such kind of persons they are involved in sexual activities, they are facing pain in their genital organs. ठीक है, sore and swollen lymph nodes. lymph nodes जो है उसकी swelling हो जाती है इनमें. ठीक है, और कुछ केसेस में जो है बोन्स जो है उसके अंदर पर्टिकुलरली जो है swelling देखी जाती है. लोअर और एब्डोमिनल रीजन में पेन रहती है. इस तरह का पर्सन जो होगा ना वो हमेशा जो है उसका एब्डोमिनल पार्ट जो है उसमें हल्की पेन बनी रहेगी. उसको हमेशा फटीग की फीलिंग होती रहती है, थका रहता है बहुत ज्यादा वो पर्सन जो है. ठीक है, फीवर रहता है उसको, हल्का फुल्का फीवर रहेगा. देन रैशेस आर देयर ऑन द ट्रंक रीजन ऑफ द बॉडी, ऑन द हैंड्स, ऑन द फीट. अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो गया है तो उसके जो फीट है उसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के लेजन्स बनने लग जाते हैं. ठीक है, बॉडी के दूसरे पार्ट से एक स्पेशल टाइप के पैचेस उसकी बॉडी में नजर आने लग जाएंगे, हैंड पे भी, फीट पे भी. ठीक है, ट्रंक रीजन होता है हमारी बॉडी का, ये जो स्टमक वाला पोर्शन है वो हमारा ट्रंक रीजन होता है, उस पे इस तरह के पैचेस जो है वो नजर आने लगेंगे. ओके बेटे. फिर वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेजर कॉजल ऑर्गेनिज्म. बिसाइड दिस प्रोटोजोन्स एंड पैरासाइट्स आर आल्सो देयर. So here we have to focus mainly on the sexual diseases such as chlamydia, gonorrhea, syphilis. I have written some of the complicated names here also. That is only to enhance your general knowledge, but we are not going to focus on that. ठीक है बेटे. इधर वायरसेस में देखिए ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस, that is HIV. Herpes virus is also one of the complicated virus. Two types of herpes virus is there. ठीक है, type 1, type 2 virus. तो इस तरह से हेपेटाइटिस के भी दो वायरस होते हैं. हेपेटाइटिस ए भी होती है, हेपेटाइटिस बी इज आल्सो देयर. तो वायरल हेपेटाइटिस ए एंड वायरल हेपेटाइटिस बी. ठीक है, अब इसकी वैक्सीनेशन बन चुकी है, कंट्री में वैक्सीनेशन लगाई जाती है. तो समटाइम्स व्हेन यू विजिट द हेल्थ सेंटर यू गो थ्रू दिस वैक्सीनेशन, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. वन ऑफ द प्रोटोजोन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ट्राइकोमोनियोसिस. ठीक है बेटे, ट्राइकोमोनियोसिस प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है. इसके अलावा देखो कुछ मैंने वैसे नेम लिखे हैं यहाँ पे. पेडिकुलोसिस, ठीक है, पैरासाइट से होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है. स्कैबीज जो है वो भी, ये भी अभी तक नोन नहीं है कि इट इज अ प्रॉपर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और नॉट. Okay student, here I am taking one by one each of the sexually transmitted disease. So I am telling you about the syphilis. तो syphilis जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है. ओके, तो उस केस में वो कहते हैं कि what kind of symptoms that are found in case of syphilis if untreated. So in case of males, inflammation of the testicles are there. There is swelling in the testis. ठीक है, टेस्टिस में swelling हो जाती है. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेल का उसमें इन्फेक्शन इज देयर. और अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन रहती है. ठीक है, इकोटॉपिक प्रेगनेंसीज क्या होती है? व्हाट आर इकोटॉपिक प्रेगनेंसीज? ऑल ऑफ यू नो कि whenever the ovum is fertilized, the ovum is supposed to implant itself in the inner wall of the uterus. ठीक है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. पर कई बार क्या होता है कि the fertilized ovum is not successfully implanted itself in the inner wall of the uterus, that is endometrium. Endometrium के अलावा ना वो fertilized ovum कई बार यूट्रस जो है उसके आउटसाइड में ही कहीं पे अपने आप को अटैच कर लेता है, या कई बार फेलोपियन ट्यूब्स में ही वो कहीं अटैच हो जाता है. ठीक है, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. फीटस जो है जहाँ पे डेवलप होना था जाके, जैसे उसने यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अपने आप को अटैच करना था ना, वहां पे उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता. उसकी जगह पे कहीं फेलोपियन ट्यूब में किसी जगह पे फर्टिलाइज्ड ओवम अपने आप को अटैच कर लेता है, या यूट्रस के बाहर कहीं अटैच कर लेता है. तो उस केस में प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एंड सच टाइप ऑफ प्रेगनेंसीज आर नोन एज इकोटॉपिक प्रेगनेंसीज. ठीक है बेटे. इसके अलावा कहते हैं कि फीटस या न्यूबॉर्न जो है, अगर इस तरह की विमेन जो है फीटस को बर्थ देती है तो उसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सफर कर रही है. ठीक है, डेथ हो सकता है फीटस. और कई केसेस में
साइफिलस अगर डिजीज उसको है मदर को, तो उसमें फीटस की अर्ली डेथ भी हो जाती है। ओके, प्रिवेंशन क्या है? व्हाट इज द प्रिवेंशन फॉर दिस डिसीज? तो वी शुड रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ, ठीक है। वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स। सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस शुड बी प्रोहिबिटेड। यूज ऑफ कंडोम्स और स्पर्मिसिडल क्रीम्स, they are generally used to reduce the transmission, ठीक है। condom should be used by the partners during sexual intercourse or whenever the person have a sexual relationship with some of the unknown person. In that situation, condoms are very much required, and spermicidal creams, they should be applied on the genital organs because they enhances the contraceptive efficiency. Okay, बेटे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द अनदर डिजीज दैट इज गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो है उसमें सिम्टम्स जो है आपको क्या था, वीमेंस में जल्दी अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। काफी पेनफुल जो है एक्सपीरियंस रहते हैं वीमेंस के लिए। इसके अलावा जो है एचिंग रहेगी, एनल पार्ट के ऊपर एचिंग रहती है, डिस्कम्फर्ट इज देयर, ठीक है। नॉर्मल ब्लीडिंग इज देयर, फाउल डिस्चार्ज फ्रॉम द vagina and other reproductive organs. The abnormal vaginal discharge is there, vaginal bleeding is there during sexual intercourse, ठीक है। genital organs जो है इसमें एक्टिंग होने लग जाती है। irregular menstrual bleeding is there because she has a sexual relationship with so many other persons. तो उसके बाद देखो abdominal pain, ठीक है। abdominal रीजन में हमेशा पेन रहेगा, फीवर रहेगा, टायर्ड रहेंगे इस तरह के वीमेंस जो है, ठीक है। swollen and painful glands at the opening of the vagina, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि विजाइनल ओपनिंग जो है वहां पे कुछ ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो फाउल डिस्चार्ज भी रिलीज करती हैं। और पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेनेवर शी हैज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, तो दैट कैन बी अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर हर, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि उसके जो गला होता है ना, थ्रोट जो होता है, उसके अंदर भी इंफेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है थ्रोट की, तो ये एक रेयर सिम्टम हो सकता है गोनोरिया का। Then we have chlamydia. What is chlamydia? It is again a viral infection, bacterial infection, ठीक है बेटे, बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद देखिए सिम्टम्स जो है जनरली अपीयर्स 1 to 3 weeks, 1 से 3 हफ्ते के बाद the symptoms they are visible in the body. So again some of the symptoms they are very much similar to the other diseases, जैसे कि abnormal discharge जो है, ठीक है, मेल में पेनिस में से और फीमेल में विजाइना में से abnormal डिस्चार्ज जो है वो रिलीज होता है। एंड डिस्चार्ज जो है फाउल स्मेली डिस्चार्ज होगा, व्हाइट और येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है। बर्निंग यूरिनेशन रहेगी, ठीक है। व्हेनेवर सच पर्संस दे हैव टू यूरिनेट, तो उनको जलन महसूस होती है यूरिन के दौरान, ठीक है। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स का मतलब है कि वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट लीड्स एट एन इंटरवल ऑफ 21 डेज ना, तो इस तरह की जो विमेन्स होंगी उसमें कुछ कुछ दिनों के बाद ही मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो रिपीट होता रहता है, तो अब नॉर्मल ब्लीडिंग रहती है, ठीक है बेटे। जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग रहेगी या फिर 15 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो रिपीट होता रहता है। इंटरकोर्स जब भी ये करेंगी तो दे हैव ब्लीडिंग। 90% ऑफ विमेन्स में सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, उसी तरह से 40% मेंस जो है में भी सिम्टम नहीं होते हैं, तो आइडेंटिफाई करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अदर वन इज जेनिटल हर्प्स। तो जेनिटल हर्प्स जो है एक वायरल डिजीज है, आपको बताया हर्प्स का वायरस होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसमें देखे जाते हैं। तो यह शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में एक्टिंग ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स आर देयर, डिस्कम्फर्ट इन द जेनिटल ऑर्गन्स, देन सोर जो है स्वेलिंग हो जानी है, ठीक है। ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स भी छाले होते हैं, तरह के वार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर पानी भर जाता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भर जाता है, अल्सर्स हो जाती हैं। स्कैब का क्या मतलब होता है कि परमानेंट, पहले वो ब्लिस्टर्स जो है ना दे आर स्मॉलर इन साइज, बाद में वो फैलते जाते हैं बॉडी में और एक डार्क कलर के बन जाते हैं, ठीक है। तो इफ योर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, व्हेनेवर यू सी द बॉडी ऑफ दैट पर्सन यू आर एबल टू फाइंड आउट कि डार्क लेजन्स जो है उनकी बॉडी के ऊपर नजर आएंगे। ओके बेटे, फ्लू लाइक सिम्टम्स आर देयर, ठीक है। ऑलवेज जो है जब भी आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दे आर नॉट वेल, ठीक है। हेडेक रहती है इनको। उसके बाद देखो पेन रहता है बैक में, बैक में पेन रहेगा, लेग्स में पेन रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स है।
उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, जो सोर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो वायरस प्रोबेबली रिमेन्स इन द बॉडी फॉर लाइफ। ऐसा नहीं है कि अगर सोर हट गए हैं तो इसका मतलब वायरस जो है वो गायब हो गया, वायरस बॉडी में हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो कई बार कहते हैं कि पर्सन जो है इसमें वायरस जो है इट कॉजेज सो मच इन्फेक्शन कि पर्सन जो है उसको वो क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचा सकता है, ठीक है। वायरस टैग विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दिस डिजीज। जो उसकी बॉडी पे लेसन्स नजर आते हैं, पैचेस नजर आते हैं, उसको देख के डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि whether he is suffering from sexual virus 1 or 2. So such type of symptoms are there. Then we have genital warts. तो genital warts जो है वो भी वायरल डिजीज है, ठीक है। स्टॉप ग्रोथ ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द जेनाइटल्स। ओके बेटे, तो इसके अलावा कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो वार्ट्स की पहले स्किन के ऊपर नजर आती है, पहले छोटे छोटे से वार्ट्स होते हैं, और इसके अलावा जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वहां पे वार्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दे आर जनरली फाउंड नियर द पेनिस एरिया, इन द वल्वो एरिया, यूरेथ्रा, वेजाइना, सर्विक्स। तो एनस के आसपास जो है इस तरह के वार्ड्स डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद देखो ट्रीटेड एंड रिमूव द सेम वे रेगुलर वार्ड्स आर देयर, ठीक है। क्रायो सर्जरी ये सब मेथड है जिससे कि उसको डायग्नोस किया जा सकता है। पार्टनर्स मस्ट कंटिन्यू रिसीविंग ट्रीटमेंट अंटिल वार्ड्स आर नो लॉन्गर प्रेजेंट। इस तरह का पर्सन जो है ही सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसीज, तो उसका कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चलता रहता है जब तक कि वार्ड्स को रिमूव नहीं कर दिया जाता बॉडी में से। अगर वो कहता है कि पर्सन जो है वो छुपाए रखता है डिजीज को और डिजीज जो है वो अनट्रीटेड रहती है, तो उस केस में कैंसर जो है उसका रूप ले सकती है, ओके बेटे। उसके बाद देखो वंस इन्फेक्टेड ऑलवेज कंटेजियस, may not see warts from 6 week to 6 month after infection, ठीक है। 6 हफ्तों से 6 महीने तक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देयर इज एन इनोकुलेशन दैट प्रिवेंट्स मोस्ट फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, जेनाइटल वार्ट्स। इतने सारे सिम्टम नहीं हमने लर्न करने हैं, तो स्टूडेंट डरेगा नहीं, बस हमने आपको इससे बताया है कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दीज डिजीजेस। Okay, but one of the student will also get investigatory project on this sexually transmitted disease. So these slides may be helpful for her. Okay, बेटे. Now we have trichomoniasis. पहले ही मैंने आपको बताया प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। फीमेल्स जो है मेल्स में दोनों में ही अपीयर होती है डिजीज। तो फीमेल्स में वेजाइना, यूरेथ्रा, सर्विक्स अफेक्टेड होती हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइनल कैनाल इज देयर। And in case of male, white discharge जो है it is released through the penis, ठीक है। Pain and burning during you can say expression of the urine. उसके बाद देखो vulvar region is also affected. Tenderness and chafing, redness हो जाती है genital organs पे, ठीक है। येलो एंड ग्रीन कलर का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो रिलीज होता है जेनाइटल ऑर्गन्स में से। पेनफुल यूरिनेशन रहता है, ठीक है। सेक्स के दौरान भी पेन जो है एक्सपीरियंस करता है पर्सन। तो ये सारी चीजें जो है वो फीमेल के अंदर नजर आएगी, ओके बेटे। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। तो हियर व्हाट आर द साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी? वायरल डिजीज है अगेन, ओके। तो हियर फीवर रहता है पर्सन को, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक फीवर बना रहेगा। फटीग की फीलिंग होगी, मतलब इस तरह का जो पर्सन है वो हमेशा ऐसे कोशिश करेगा कि वो थोड़ा सा आराम कर ले, उसको स्लीपलेसनेस की मतलब सोने की उसने कोशिश करनी है पर उसको नींद नहीं आएगी, पर उसको स्लीपी फील होता रहेगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगनी है बंदे को, उसको खाने का मन नहीं करेगा, इस तरह की फीलिंग आने लगेगी। नॉसिया इज देयर, घबराहट रहती है बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग होती है फ्रीक्वेंटली, टाइम टू टाइम वॉमिटिंग होती रहती है। एब्डोमिनल पेन इज देयर। यूरिन जो है उसका डार्क यूरिन होता है, वैसे आपको पता है कि यूरिन जो है वो कलरलेस होता है ना, पर सच टाइप ऑफ पर्सन जो है उसका यूरिन डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है बेटे। क्ले कलर्ड वॉवल मूवमेंट्स, वॉवल मूवमेंट्स क्या होती हैं? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट फीकल मैटर होता है ना, उसको बॉडी में से रिमूव करने के लिए वॉवल मूवमेंट्स जो है बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जिससे फीकल मैटर आपकी बॉडी में से बाहर जाता है। तो इस तरह का जो पर्सन है उसमें क्ले कलर्ड वॉवल मूवमेंट्स आर सीन, ठीक है। जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा। जॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेग के जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होना है, देखो यहाँ फिंगर के भी छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं सभी में पेन आने लग जाता है। उसी तरह से फीट की जो भी हमारी टोज है उसमें भी, ठीक है। जॉन्डस हो जाती है सीवियर केसेस में।
और इसके अलावा जो है हिपैटोमेगाली इज अ काइंड ऑफ ए डिसऑर्डर, ठीक है, वो भी इसमें देखा जाता है। ओके, नाउ एड्स के सिम्टम दैट इज नोन टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटे, फीवर इज आल्सो देयर इन केस ऑफ एड्स। कुछ दिनों के लिए फीवर रहता है, पूरे पूरे मंथ तक भी फीवर रह सकता है, ऐसा नहीं है बहुत तेज फीवर होगा, कभी बहुत तेज होगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। ओके, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, one of the very important feature that you have to identify the aid victim is कि इस तरह का पर्सन जो है ना उसके अंदर वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक टाइम पे आप उसे बिल्कुल हेल्दी देखेंगे एंड एक समय में आपका इस तरह का बिल्कुल सूख गया है पर्सन, वेट हैवी वेट लॉस होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एड्स का। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी इस तरह के पर्सन को, ठीक है, नौसिया की फीलिंग रहेगी, बेचैन रहेगा, घबराहट रहेगी, वॉमिटिंग भी होती है इस तरह के पर्सन को, टायर्डनेस हमेशा रहेगी, ठीक है, भाग भाग के सोने के लिए जाएगा, हमेशा सोते रहे, इस तरह से लगेगा कि मतलब हमेशा लेटा रहे, इस टाइप की फीलिंग। लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज एड्स वायरस इज अ पावरफुल वन, और आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ नोड्स जो है आपकी वहां पे एंटीजेंस बाइंड करती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो लिम्फ नोड्स जो है उसमें जब इस तरह का पावरफुल एंटीजन एंटर करता है तो बॉडी जो है उसमें एलिसिट होता है इम्यून रिस्पांस, ह्यूज एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस्ड। So doctors they will identify if there are hundreds of antibody cells are there in the body, this means definitely that person is suffering from one big disease. ओके बेटे, थॉट कैसा हो जाना है, शोर हो जाना है इस बंदे का, स्वेलिंग हो जानी है थॉट के अंदर, और ड्राई फील करेगा, ऐसे लगेगा गला सूख रहा है, ठीक है, बार बार पानी पीने की उसको ऐसे लगना है, फिर पीता जा रहा है, बेशक कितने भी ड्रिंक ले रहा है पर उसको सूखा हुआ ही लग रहा है, स्वेलिंग हो जाती है गले में से, खाना भी उतरता नहीं है नीचे, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग एंड मल्टीपल वायरल स्किन इन्फेक्शंस। उसके बाद कहते हैं कि जो भी बॉडी के अंदर डिजीज आती है ना वो उसके अंदर हमेशा के लिए रह जाती है, बिकॉज सिंड्रोम वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग है हाउस ऑफ डिजीजेस, ठीक है, तो इट इज नॉट अ सिंगल डिजीज बट वेयरएज इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। तो वायरल इन्फेक्शंस जो है, स्किन इन्फेक्शन, छोटे मोटे जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी वो डिजीज करेंगे ना बॉडी में हमेशा के लिए रह जाएंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है बेटे। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो दैट आई विल डिस्कस टुमारो। काफी पढ़ा दिया आज, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? Okay, but I will send you the presentation. You go through the symptoms. We need not to remember all the symptoms. Whenever there is a question in an exam, we have to write the overall symptoms of the diseases. ठीक है, तो आपने